السلام علیکم، ناہید حامد، عائشہ ذوالفقار، آخری قسط، بکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وہ دفتر سے واپس آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے لیکن کمرہ ہنوز بند تھا۔ رخسانہ دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گئی۔ زبیر اب کیا ہوا ہے؟ وہ بولی۔ زبیر نے دروازہ کھولا تو چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ پتر کی ہویا؟ وہ تڑپ گئی۔ خدا کا نوٹس آ گیا ہے رم اللہ کی طرف سے، زبیر نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ رخسانہ دھک سے رہ گئی۔ زبیر نے ڈھال سا بستر پر گر گیا۔ رفیق صاحب بھی آ گئے تھے۔ تیری والی کیا کہتی ہے؟ انہوں نے اپنے کمرے میں جاتے اویس سے پوچھا۔ ایسا ہی ایک نوٹس مجھے بھی آ جائے گا بہت جلد، اویس نے کہا۔ خدا جانے کس کی نظر لگ گئی ہے گھر کو۔ رخسانہ زبیر کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اویس بھائی، شرمین کو چھوڑ ہی دیں آپ، اس نے ساتھ عمر یوں ہی ساری عمر ذلیل کرنا ہے آپ کو۔ حمزہ بھی آ گیا تھا۔ ادھر اس نے شرمین کو چھوڑا، ادھر علینا یہاں واپس آئی۔ رخسانہ نے کہا تھا آ لینے دیں، دیکھا جائے گا۔ حمزہ نے کہا ایک بچی کے ساتھ تا عمر کے لیے داغ لگوا کر بیٹھ جائیں گے؟ رخسانہ زور سے بولوں گی میں کر لوں گا علینا سے شادی۔ حمزہ نے دھماکہ کیا تھا۔ رخسانہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تائی امی، وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ زبیر بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ یاسر سے ایک دفعہ اور بات کریں، آپ کہتی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں اس کے پاس، وہ جتنا مارتا ہے مار لے لیکن اتنا بڑا قدم نہ اٹھائے۔ اسے کہیں ہم زبیر کو الگ گھر لے دیں گے، خدا کی قسم میں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا کبھی اسے۔ اگر وہ رم اللہ کو یہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو بس وہی یہاں رہے، میں اور اویس بھائی الگ رہ لیں گے۔ حمزہ کہتا چلا گیا لیکن اس میں شرمین کا پتہ صاف کریں، وہ ساتھ رہے یا الگ، فساد کرتی رہے گی۔ علینا کی فکر نہ کریں، اگر حاتم نے اسے چھوڑ دیا تو میں اپنا لوں گا، وہ بولا تھا۔ رخسانہ نے اویس کی طرف دیکھا۔ کیا کرنا ہے اب؟ انہوں نے پوچھا۔ دیکھ اویس، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تجھے یہ سب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ تجھے روکا تھا، سب نے روکا تھا اور اسی لیے روکا تھا یہ دن نہ آئے جو آ گیا۔ اب سوچ لے آگے کیا کرنا ہے، تیری زندگی ہے، تیرا فیصلہ ہے، کل کلا کو کسی کے سر دوش نہ رکھی۔ رخسانہ نے کہا پر میں تجھے ایک بار بتا دوں اویس کہ لڑکیاں ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، اگر آدھی رم اللہ جیسی ہوتی ہیں تو باقی کی آدھی شرمین جیسی ہی ہوتی ہے۔ کوئی ماں اپنی بیٹیوں کی تربیت غلط طریقے سے نہیں کرتی، لیکن فطرت اپنی جگہ ہے اویس، اور فطرت سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب تیری قسمت کہ تجھے شرمین جیسی مل گئی، تو کیا یہ مسئلے کا حل ہے کہ جیسے شرمین جیسی مل جائے وہ 1.5 سال بعد چھوڑ دے؟ نہیں، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اب اگر وہ تیز ترار چلاک ہے، زبان کی تیز ہے، کام چور ہے، تو کیا بس اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے؟ تو نے اس سے نکاح کیا ہے اویس، بیوی ہے وہ تیری، اسے سدھارنا فرض ہے تجھ پر۔ خدا نے صرف ایک صورت میں بیوی سے الگ ہو جانے کو کہا ہے کہ جب وہ شوہر کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے، نافرمانی کرے۔ اس عورت میں بھی پہلے سرزنش کرو۔ اویس، اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی ایسا نکل آئے تو کیا چھوڑ دیتے ہیں اسے؟ کہہ دیتے ہیں جا دفعہ ہو جا؟ نہیں نا، میں نے آج تک زرینہ کو گلے سے لگا کر رکھا ہوا ہے، 6 سال ہو گئے، کیا کچھ نہیں ہوتا ان دونوں میاں بیوی کے بیچ، لیکن شمس نے اسے طلاق نہیں دی، کیونکہ پتر اگر مرد اپنی بیوی کو ہی نہ سدھار سکے تو وہ کیسا مرد ہوا، وہ کیسا شوہر ہوا جو اپنی بیوی سے اپنی محبت سے رام ہی نہ کر سکے۔ اویس پتر، اگر چھوڑنا ہے تو بھی تیری مرضی، چھوڑ دے، کل کو مجھے نہ کہیں کہ ماں میری زندگی برباد کر دی، لیکن اگر واپس لے کر آنا ہے تو اسے اس کی اوقات پر رکھنا پڑے گا، سختی بھی کرنی پڑے گی۔ عورت اپنے آدھے سے زیادہ مسئلے بچوں میں لگ کر بھول جاتی ہے۔ آج اگر اس کی گود میں ایک بچہ ہوتا تو صورتحال یہاں تک پہنچتی ہی نہیں۔ رخسانہ کہتی چلی گئی، اور تو اور اس نے اپنے ہاتھوں اپنا گھر اجاڑا ہے زبیر، تو نے ایک نیک اور پارسا بیوی کو ٹھکرا دیا، خدا ہی رحم کرے تجھ پر۔ رخسانہ نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ شرمین، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں تجھ سے، واپس جانا ہے یا نہیں؟ حاتم نے پوچھا تھا۔ وہ پاؤں اوپر کیے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ بولی۔ طلاق لینی ہے؟ ایک بار پھر حاتم نے پوچھا۔ ہاں، وہ ہر دھرمی سے بولی تھی۔ شرمین، مجھے افسوس ہوتا ہے تیرے اوپر، پتہ نہیں تو کس پر چلی گئی ہے،
तुझे दरअसल आदत पड़ गई है ये निकाह और तलाक वाला खेल खेलने की। शादी क्यों की थी फिर इससे? हातिम फट पड़ा। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद वो ये सब करेगा। वो बोली, क्या किया उसने तेरे साथ? हातिम धाड़ा, गला दबाया है मेरा। उसने तेरा गला दबाया होता तो तू मेरे सामने बैठी यूं बकवास ना कर रही होती। वो बोला, मुझे कोई एक मजबूत वजह बता कि वापस क्यों नहीं जाना। तशद्दुद करता है वो तुझ पर, मारपीट करता है, गालियाँ देता है तुझे, गधों की तरह काम करवाता है, नान-नफ़का पूरा नहीं करता, तंगी में रखता है, शक करता है। क्या करता है वो तेरे साथ? हातिम कहता चला गया। शर्मीन बोल न सकी। वो अगर तुझे कहता है कि अपना कमरा खुद साफ कर, तो टूटे हैं हाथ तेरे। अपना काम खुद क्यों नहीं करती? शादी के 2 साल बाद भी तुम दोनों की औलाद नहीं हुई। ये हक अदा करती है तू उसका? शर्मीन, अगर ये तेरे साथ पहली दफ़ा हो रहा होता तो शायद मैं आँखें बंद करके तुझ पर एतबार कर लेता। सिर्फ़ तेरी ही सुनता, तेरी ही मानता। लेकिन यह सारा तमाशा मैं 6 साल पहले भी देख चुका हूँ। तब भी ऐसे ही किया करती थी तू। तब भी तुझे यही मसले-मसाइल थे। चल, यहाँ तो काम करना पड़ता था। वहाँ क्या था? 3-3 कामवालियाँ रखी हुई थी उन्होंने। कोई 10 चक्कर लगाए थे वकास ने। हातिम बिफर गया। ज़बरदस्ती करता था वो मेरे साथ। शर्मीन के कहते ही हातिम का थप्पड़ इसका गाल रंग गया। तुझे पता भी है कि ज़बरदस्ती क्या होती है? वो धाड़ा था। शर्मीन साकत बैठी रह गई। वो तुझे निकाह करके लेकर गया था। बीवी थी तो उसकी। वो तेरे करीब आता था तो ये ज़बरदस्ती थी? तुझे पता भी है शर्मीन कि एक मर्द की औरत के साथ ज़बरदस्ती क्या होती है? अगर तेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की होती, तो अब तक तेरी हड्डियाँ भी सड़ चुकी होती। कब्र में ज़बरदस्ती। हातिम कहता चला गया। शर्मीन, एक बात कान खोल के सुन ले। बस बहुत हो गया तमाशा। या तो अपने घर वापस चली जा या फिर अपना हिस्सा ले और मेरे घर से दफ़ा हो जा। वो बोला, हातिम ये 3 बहनें तेरी, माँ-बाप सर पे नहीं है। नसरीन ने कहा, तो फिर ठीक है, रखें इसे अपने पास, मैं अलग हो जाता हूँ। वो बोला और कमरे से बाहर निकल गया। अवैस का नंबर मिलाकर उसने फ़ोन कान को लगाया था। हेलो, अवैस की आवाज़ सुनते ही वो बिफर गया। बंदे का पुत्र बनकर अपनी बीवी को वापस लेकर जा। मुझे नहीं पता कैसे, बस लेकर जा। कल शाम तक मुझे यहाँ इसकी शक्ल ना नज़र आए और अगर नहीं लेकर जाने तो अपने माँ-बाप से कहकर आके अलीना को ले जाए। ऐसे तो ऐसे ही सही। उसने गुस्से से कहा और कमरे में आ गया। अलीना अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। हातिम एक लंबी सांस भरते हुए बिस्तर पर गिर गया। मुझे पानी पिला दो, वो बोला। अलीना ने बच्ची को सहारा देकर बिठाया और उसे पानी का गिलास पकड़ा दिया। ग्लास पकड़ते हुए हातिम चौंक गया। ग्लास लरस रहा था। उसने फौरन अलीना की तरफ देखा। सता हुआ चेहरा, सुर्ख आंखें, कपकपाते होंठ, जर्द रंगत, लरसती उंगलियां। तुम्हें क्या हुआ? वो बोला। हुरैन का क्या बनेगा? वो बोली तो आंसू निकल पड़े। हातिम ने एक लंबी सांस भरी थी। अलीना, मैं तुम्हें शक्ल से जल्लाद नजर आता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है। वो तुड़क कर बोला तो वो फूट फूट कर रो दी। हातिम ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखते हुए पानी का गिलास एक तरफ रखा और उसे खुद से लगा लिया। तुम पागल हो क्या? तुम्हें कुछ कहा है मैंने? मुझे तुम्हें और हुरैन को लेकर अलग भी होना पड़ा तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन इन दोनों बेगारतों के सर चढ़कर ऐवें ही छोड़ थोड़ी ना दूंगा। क्या मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी बेकसूर है? वो बोला। अलीना को रोते देखकर बच्ची भी रोने लग गई थी। वो देखो, वो भी रोने लग गई है। हातिम ने उसे गोद में ले लिया। डरावा देना पड़ता है अलीना, शायद डरावे से ही उसे अकल आ जाए। हातिम ने कहा था। वो बेचारा मिन्नतें कर करके रह गया, लेकिन रमल्ला ने उसे माफ़ नहीं किया। कैसे कर देती? क्यों कर देती? एक तरफ अशरफुल मखलूक़ात होते इंसान को जब जानवरों की तरह मारा जाए तो माफ़ी क्यों कर मुमकिन है? यासिर, मैं उसे अलग घर ले देता हूँ। मैं सारी ज़िंदगी इसके आगे उफ़ तक नहीं करूँगा। कभी उँगली तक नहीं उठाऊँगा इस पर। बस इसे एक बार कहो कि मुझे माफ़ कर दे। यासिर, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दे। वो बिला नागा यासिर के हज़ूर पेश हो रहा था। ये भी अच्छा है, अलग घर लेकर दे सकता है, लेकिन इस घर में रखकर इसकी हिफाज़त नहीं कर सकता, उसकी इज़्ज़त नहीं करवा सकता। यासिर उसे देखते ही बिफर जाता था। वो सारा घर इसी का है यासिर, सारा घर। कोई नहीं रहेगा वहाँ सवाए उसके। वो जो कहेगी वही होगा, जैसे कहेगी वैसे ही होगा। इसे कहो बस कर दे, माफ़ कर दे।
वो रोता जाता था, बिलखता जाता था। उस दिन भी रमल्ला की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी। वो भरी अदालत के सामने इसके पैरों में गिर गया। अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। रमल्ला अल्लाह के लिए, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा किया मैंने। जो गलत किया वो ठीक भी नहीं हो सकता। मेरे पास सिवाय माफ़ी के और कुछ नहीं है। माफ़ कर दो, खुदा के लिए माफ़ कर दो। वो उसे बिलखते हुए कह रहा था। जज जज ने एक्सटेंशन दे दी थी। इस रात यासर दोबारा रमल्ला के पास आया था। 2 माह हो चले थे। रमल्ला पुत्र, अगली तारीख पर जज ने फैसला सुना देना है। पुत्र, मैं आज भी तेरे साथ हूँ और कल भी, और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तू और तेरे बच्चे मेरे ऊपर कभी भी बोझ नहीं होंगे। सारी उम्र मैं तेरा और तेरे बच्चों का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी अगर तेरे दिल में इसके लिए कोई गुंजाइश निकलती है, तो मुझे बता दो। मैं तो भाई हूँ, लोग मुझे जोशीला कह देते हैं। लेकिन पुत्र, ज़िंदगी तेरी है, फैसले का इख्तियार भी तेरा ही है। तो अगर उससे अलग होना चाहेगी, तो भी मैं तेरे साथ हूँ, और अगर उसे माफ़ करना चाहेगी, तो भी मैं तेरे साथ हूँ। वो कहता चला गया। तेरे पास पूरा 1 हफ्ता है रमल्ला, सोच ले, समझ ले, दोनों रास्ते तेरे आगे हैं। एक बात कह देता हूँ तुझे, तेरी मुश्किल मुश्किल ज़रा आसान हो जाएगी। अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी पर एक नज़र डाल ले। अगर कोई एक लम्हा, कोई एक बात, कोई एक खूबी ऐसी है जिसके सदके तू उसे माफ़ कर सके, तो सोच ले, कल-कला को ये ना कहना कि भाई ने मेरा घर उजाड़ दिया। वो कहकर उठ गया था, और शायद इससे ज़्यादा कड़ा वक़्त किसी लड़की के लिए ज़िंदगी में और कोई नहीं होता। उसने एक नज़र अपने बराबर में लेटे दोनों बच्चों पर डाली। एक आखिर औरत क्या करे इस दहेज पर आकर, जबकि वो एक माँ भी हो। आखिर क्यों मर्द हाथ उठाते हुए यकलख्त सब भूल जाता है? आखिर क्यों हमेशा माफ़ करना औरत के ही हिस्से में आता है? आखिर क्यों हमेशा मज़लूम वही होती है? धीरे से आंखें बंद करते उसने बेड के ग्राउंड से टेक लगाई थी। आंसुओं के कतरे खामोशी से इसके गालों पर बह निकले थे। क्या वाकई तुम्हारी ज़िंदगी गुजरी हुई जो भी है, उसमें कोई ऐसा लम्हा है जिसके बदले तुम उसे माफ़ कर सको? और उस दुःख की इंतहा कोई कैसे समझे, जब शौहर नामी उस मर्द के साथ गुज़री ज़िंदगी में से बीवी को कोई एक लम्हा भी ऐसा ना मिल सके, कोई ऐसा पल याद ना आए जिसके बदले उसे माफ़ किया जा सके, कोई ऐसा दिन याद ना आए जो जन्नत बनकर गुज़रा हो, कोई ऐसा लम्हा ना गुज़रा हो जिसे सोचकर दिल में मोहब्बत की कोई रमक पैदा हो जाए, कोई ऐसा बोल ना दिया जाए जिसके सदके आप अपने बच्चों के बाप को माफ़ कर दें। हकीकत यही है। शौहर के ज़ुल्म और ज़्यादतियों की इंतहाओं को झेलती हुई लड़कियां जब बेबस होकर बाप का दरवाज़ा खटखटाती हैं और गुजरी सारी ज़िंदगी के रंजो अलम सुनाती हैं, तो कोशिश के बावजूद वो अपने माजी में से कोई ऐसा लम्हा नहीं ढूंढ पाती जो इनकी ज़िंदगी को दोबारा से पहले जैसा कर सके। क्योंकि जो शख्स इस लड़की का निगहबान बनकर उसे पूरे हक से ब्याह कर लेकर जाता है, सारी उम्र बस वही इसका नहीं हो पाता। गिला सिस्टम से नहीं है, ससुराल से नहीं है, सास-ससुर से नहीं है, नंदों से नहीं है, दरानियों और जेठानियों से नहीं है। ये न सिर्फ़ और सिर्फ़ उस मर्द से है जो शौहर है, जो शौहर होकर भी अपनी बीवी की ढाल नहीं बनता, जो सबकी सुनता है सवाए उसके, जिसे सब पर एतबार है सवाए उसके। कितना आसान होता है ना ये कहना, माज़ी में जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? बीवी कैसे भूल जाए शौहर की गाली, शौहर के ताने, शौहर का थप्पड़, और कितनी दफ़ा भूल जाए? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, या हर दफ़ा? और तारीख तरीन लम्हा वो होता है जब एक पढ़ा लिखा शौहर अपनी पढ़ी लिखी बीवी पर हाथ उठाता है। जान को तो कहीं शऊर नहीं, क्या पढ़े लिखे को भी शऊर नहीं? बेचारी बीवी रुल जाती है, सारी उम्र ससुराल में तगोदो करते-करते। आखिर किस लिए? सिर्फ़ उस एक शख्स को अपना बनाने के लिए, और वो ही इसका नहीं बन पाता। और जो हज़ारों में से एक पहले दिन से शौहर को अपना बना ले, उसे वैसे ही माशरा नहीं जीने देता। उसके शौहर का जो पहला ताना मिलता है, वो होता है रन-मुरीद। लेकिन ये कौन-सा हकीकत है? ये तो कहानी है। इसे भला इतना तल्ख़ क्यों करें? अगर कहानियाँ भी तल्ख़ होने लगीं, तो फिर इनमें और हकीकी ज़िंदगी में फ़र्क क्या रह जाएगा? सो इस पल कहानी में रमल्ला को शायद वो पल ढूँढ लेना चाहिए, जिसके सदके वो अपने शौहर को माफ़ कर सके। इसके केबिन के दरवाज़े पर दस्तक हुई थी। नज़र उठाकर देखा तो अवैस खड़ा था।
उसने सर का इशारा करते हुए उसे अंदर आने का कहा था। कैसा है दोस्त? अवैस ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। कभी था तू मेरा दोस्त, हातिम ने कहा। अवैस ने सर झुका लिया। मैं आज शाम को शर्मीन को लेने आऊँगा, अवैस ने कहा। फिर? हातिम ने कहा। हातिम, मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन शायद इतना बुरा भी नहीं जितना वो समझने लग गई है। वो मुझे मेरी आखिरी हद पर पहुँचा देती है, तब मेरी आवाज़ उसके आगे ऊँची होती है। खुदा की कसम, मैंने आज तक उसे कभी इसकी इंतहाई बदतमीज़ी के बावजूद उस पर हाथ नहीं उठाया। मैं इसे नहीं छोड़ूँगा। उस डर से नहीं कि छोड़ा कि अलीना उजड़ जाएगी, बस नहीं बल्कि इसलिए कि वो मेरी बीवी है और उसे सुधारना मेरा फ़र्ज़ है। अवैस कहता चला गया। मुझसे क्या चाहता है? हातिम ने कहा। बस ये कि मैं उसे जैसे मर्ज़ी लेकर जाऊँ, तो बीच में नहीं आएगा। वो चाहे जितना मर्ज़ी ड्रामा करे, थोड़ी देर के लिए तो खुद को रोक कर रखेगा। मैं जानता हूँ हातिम, वो तेरा खून है, बहन है, इज़्ज़त है, लेकिन यकीन कर, वो अब मेरी भी इज़्ज़त है। अवैस ने कहा। फिर वापस आ गई तो? हातिम ने कहा। मैं फिर वापस ले जाऊँगा। कितनी बार आएगी? जब देखेगी कि पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, तो खुद ही ठंडी पड़ जाएगी। अवैस ने कहा। हातिम, वो मेरी बीवी है, मैं जैसे मर्ज़ी इससे अपना हक वसूल करूँ। वो जितना मर्ज़ी तेरे आगे मुझे वहशी दरिंदा साबित करे। बस कुछ अरसे के लिए तू अपने कान बंद रखेगा। दरअसल उसे आदत पड़ गई है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मनवाने की। मुझे उसकी ये आदत छुड़वाने में कुछ अरसा तो लगेगा। बस इस अरसे में तू खामोश रहेगा। अवैस ने कहा। हातिम समझ गया था कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये जो मेका होता है ना, ये किसी भी औरत की सबसे बड़ी पुष्ट-पनाह ही होता है, और शर्मीन इस पनाह का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। अवैस बस कुछ अरसे के लिए इस पनाह को इसके लिए ख़त्म कर देना चाहता था। शाम को वो उसे लेने आया था, अकेला। हातिम घर पर ही था। शर्मीन कहाँ है? उसने अलीना के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। अंदर, कमरे में, वो बोली। अवैस सर हिलाकर अंदर चला गया। वो मोबाइल पकड़े कानों में हैंड फ्री कान में लगाए लेटी हुई थी। चलो उठो, घर चले, अवैस ने कहा। मुझे नहीं जाना, वह बोली। शर्मीन, बस करो, बहुत हो गया, अवैस ने कहा। यही तो, बहुत हो गया, मेरी जान छोड़ दो, वो बोली। अगर जान ही छुड़वानी है तो शादी क्यों की थी मुझसे? अवैस ने कहा। गलती हो गई मुझसे, वो बोली। तो बस, फिर आप इस पूरी ज़िंदगी इस गलती का खमियाज़ा भुगतो। कुछ गलतियों का कफ़ारा नहीं होता। उठो, चलो मेरे साथ, वो बोला। अवैस, मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, मुझे तलाक चाहिए, वो फंकार कर बोली थी। अवैस चंदा में उसे देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। शर्मीन अपनी जगह से टस से मस ना हुई। चलो, अवैस ने उसकी कलाई पकड़ी थी। तुम्हें अलग रख लूँगा, सबके साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहो, वो बोला। मुझे सिरे से तुम्हारे साथ ही नहीं रहना, वो बोली। किस वजह से? उस पर झुकते हुए बोला था। मैं तुम्हें कोई वजह देना ज़रूरी नहीं समझती, मेरी मर्ज़ी, वो हठधर्मी से बोली थी। अवैस चंद में उसकी आंखों में देखता रहा, फिर एकदम उसके गले में पड़ा शिफॉन का बारीक सा दुपट्टा खींचा और उसकी दोनों कलाइयाँ जकड़ ली। अवैस, छोड़ो मुझे, वो तड़पी। बकवास बंद कर लो। अवैस ने उसकी दोनों कलाइयाँ मजबूती से दुपट्टे से बांध दी। अवैस, वो भलक के बल चीखी थी। अवैस ने बाकी का दुपट्टा उसके मुंह के गिर्द लपेट दिया, फिर उसे बाजू से पकड़ा और बाहर ले आया। नसरीन बाजी, इसका बैग तैयार कर देना, मैं कल फैक्ट्री से घर आते हुए ले जाऊंगा। वो इसे साथ लिए बाहर निकला था। अलीना, इसकी चादर लाओ, अवैस ने कहा। शर्मीन किसी भूखी शेरनी की तरह इसकी गिरफ्त से अपने बाजू छुड़वा रही थी। अलीना इसकी चादर ले आई। अवैस ने चादर इसके ऊपर डाल दी। हातिम ने अपने कमरे की खिड़की में से उसे देखा था। एक लम्हे के लिए तो दिल डूब सा गया था। परेशान मत होना, सब ठीक है। वो अलीना के सर पर हाथ रखते हुए उसे वहां से ले गया था। मैं बिल्कुल दिल नहीं करता उसे माफ़ करने को, और शायद मुझे उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। शायद किसी किसी भी बीवी को ऐसे शौहर को माफ़ नहीं करना चाहिए जिसने उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स मजरूह की हो। औरत के लिए इज़्ज़त से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, मोहब्बत भी नहीं। लेकिन वो कहते-कहते रुका, यासिर उसके सामने बैठा था। वो रोया है मेरे लिए, दिल से। वो 3 दिन और 3 रातें एक ही पैंट शर्ट में मेरे सरहाने खड़ा रहा था। पूरे 3 माह उसने मुझे बिस्तर पर बिठाकर मेरी तीमारदारी की, कभी उफ़ तक नहीं किया। दिन को दफ्तर जाता था और रात को मेरे लिए जागता था।
वो यासर के सामने बैठकर कहती चली गई, यासर भाई, गुज़रे 2 सालों में उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। सबसे बढ़कर शक किया है और शक में आकर मेरे ऊपर हाथ उठाया है। उसे कभी माफ़ ना करने के लिए वो एक रात ही काफ़ी है जब उसने मुझ पर शक करके मुझे जानवरों की तरह मारा। लेकिन वो ज़रा से रुकी। उसने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है। मेरा हमेशा बहुत ख़्याल रखा है। मुझे कभी तंगी नहीं होने दी। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। आज भी करता है। मुझे यकीन है आज अगर वो रो रहा है तो वो सच में नादम है। मैं चाहूँ तो उसे कभी माफ़ ना करूँ और उसे माफ़ ना करने पर मुझसे कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा। लेकिन शायद इसकी बहुत सारी ज़्यादतियों के मुकाबले इसकी कुछ-कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और इन अच्छाइयों के सदक़े उसे एक मौका और सही, वो बोली थी, अगर ये अच्छाइयाँ ना भी होती ना यासिर भाई, तो शायद मैं फिर भी एक मौका दे देती। इन 2 बच्चों की ख़ातिर, जब तक अपने बाप के लम्ब से महरूम है। वो रो रही थी और ऐसा ही होता है, बीवी एक मौका दे ही देती है, उस शौहर को भी जिसने उसकी इज़्ज़त को मिट्टी कर दिया हो। भला क्यों? क्योंकि वो बीवी बनने से पहले एक औरत होती है, अपने सीने में एक इंतहाई नरम सा दिल रखे हुए एक औरत, जो जिस भी रूप में हो, माँ, बहन, बीवी, बेटी, अंत में माफ़ ही कर देती है। एक औरत के लिए इज़्ज़त और वफ़ा से बढ़कर और कुछ नहीं होता, मोहब्बत भी नहीं, लेकिन अंत में वो इन दोनों चीज़ों का कत्ल भी माफ़ कर देती है, क्योंकि शौहर की सारी ज़्यादतियाँ एक तरफ और हाथ जोड़कर माफ़ी माँग लेना एक तरफ। 2 आँसू बहा देना एक तरफ, बीवी का माथा चूमकर और इतना कह देना एक तरफ कि आई लव यू, बस सब खत्म। लेकिन ज़रा सोचिए, वो औरत जो माफ़ नहीं करता है, वो माँ, वो बहन, बीवी, वो बेटी, जो अंत में भी माफ़ नहीं कर पाती, क्या इसके सीने में दिल नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो नरम सा गोश्त का नोथड़ा माफ़ी का वक़्त आते-आते एक पत्थर बन चुका होता है। फिर भले ही शौहर अंगारों पर ही क्यों न चले, दीवारों से सर ही क्यों न फोड़े, पत्थर पर कोई असर नहीं होता। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ माफ़ी माँग रही हूँ यासिर भाई, शराइत आप रखेंगे। उसने अपने आँसू साफ़ किए थे। यासिर ने उसके सर पर हाथ रख दिया था। वो उसे यूँ ही बाजू से जकड़े घर में दाख़िल हुआ था। दरवाज़े से अंदर आते ही शर्मीन ने यकदम अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़वा लिया और बाहर को भागी। रुखसाना समेत तकरीबन सभी बाहर सेहन में बैठे थे। अवैस ने एकदम इसे पकड़ा और अंदर लेकर आया। दूसरे हाथ से उसने शर्मीन का मुँह खोला था। इस अल्लाह की बंदी ने मुँह खोलते ही पूरे के पूरे दाँत अवैस के बाजू में गाड़ दिए। अवैस का ज़ोरदार तमाचा इसका मुँह रंग गया था। उसे घसीटते हुए वो अंदर कमरे तक ले गया। बेगैरत इंसान, छोड़ो मुझे। वो हलक के बल चिल्लाई थी और अवैस का हाथ दूसरी बार उठ गया था। फिर चिल्लाओ। उसने दुपट्टा खींच के इसके दोनों हाथ भी आज़ाद कर दिए। मैं थप्पड़ों से मुँह लाल कर दूँगा शर्मीन, अगर ज़ुबान बंद ना हुई। अवैस की आँखों में खून उतर आया था। शर्मीन कहर-आलूद निगाहों से उसे घूर रही थी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी। बस इससे आगे कहानी ख़त्म। तुम्हें मरकर ही मुझसे आज़ादी मिले तो मिले। जीते जी तो किसी सूरत भी नहीं छोड़ूँगा तुम्हें। अवैस ने मज़बूत लहजे में कहा था। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई मेका भी है और याद रखना कि जितनी बार यहाँ से भागोगी, मैं उतनी बार वापस लेकर आऊँगा। शादी की है, खेल नहीं खेला। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया। कमरा लॉक कर दिया। जाइए, चाहिए अंदर खुदकुशी कर ले। अब रुखसाना ने कहा, इतनी बहादुर नहीं है वो। अवैस मुतमईन था। यासिर ने अपनी शराइत रख दी थी। सबसे पहली शर्त, एक अदद अलग घर। दरअसल मियाँ ये है कि पढ़े-लिखे लोग भी इस बात को नहीं समझते कि जब एक नई लड़की ब्याह कर आती है, तो इसे इस कदर हजूम में रखना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उलमा और दानिशवर चीख-चीख कर थक गए हैं कि नई ब्याह कराने वाली लड़की का अलग घर में रहना इसका शरई हक है। इससे बहुत सारे झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी 5-6 मुख्तलिफ मिज़ाज की औरतें जिनका आपस में कोई खून का रिश्ता भी ना हो, वो आखिर एक छत के तले सलूक के साथ कैसे रह सकती हैं? बिल्कुल नामुमकिन। माएँ रोना-पीटना डाल देती हैं कि कलेजा का टुकड़ा खींच कर ले गई। बेटियों को, माँओं को सबसे ज़्यादा प्यारा वही बेटा होता है जिसकी शादी हो जाए, अलग घर हो, ये सारे फ़साद ही क्यों हों? यासिर पुत्र, हम लोग गाँव वाला मकान बेच रहे हैं। मैं और रफ़ीक भाई अलग-अलग घर लेंगे। मैं और मेरी सारी फैमिली अलग रहेगी।
रफ़ीक भाई ने अपने हिस्से में से ज़ुबैर और अवैस दोनों के लिए शहर में अलग-अलग घर देख लिए हैं। रमल्ला का दिल करे तो सास-ससुर के साथ रह ले, नहीं तो अकेली रह ले। इसके घर ना तो अवैस और उसकी बीवी कदम रखेंगी और ना मेरी फैमिली में से कोई जाएगा। शफीक ने कहा। पंचायत के सरपंच ने यासिर की तरफ देखा। ठीक है, यासिर ने कहा। दूसरी शर्त, जितने थप्पड़ ज़ुबैर ने उसे मारे हैं उतने ही रमल्ला उसे मारेगी। सबके सामने, बिल्कुल वैसे ही धक्के देगी, बिल्कुल वैसे ही ठुड्डे मारेगी जैसे उसने मारे थे। और अगर आज के बाद इस बेगैरत आदमी ने मेरी बहन को उँगली भी लगाई तो मुझसे बुरा नहीं होगा। उसे उसके दफ्तर से घसीटते हुए गाँव तक लेकर आऊँगा, चाहे ये रास्ते में मर जाए। यासिर ने कहा। ज़ुबैर तेरे सामने बैठा है, पूरी पंचायत के सामने ये कसम खाएगा कि आइंदा ये रमल्ला को अपनी ज़बान से या हाथों से कोई गज़ंत नहीं पहुँचाएगा। इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा, अपने बच्चों का सारा खर्चा खुद उठाएगा। शफीक ने कहा, रमल्ला जो चाहे मेरे साथ सलूक करे, मैं अब भी नहीं करूँगा। आज के बाद अगर उसकी बहन की आंखों में मेरी वजह से आंसू आया, तो चाहे ये मुझे गोली मार दे। बस एक बार मुझे माफ़ कर दे। ज़ुबैर हारे हुए लहजे में बोला। तीसरी शर्त, रमल्ला को लेने ज़ुबैर अकेला नहीं आएगा, हमज़ा इसके साथ आएगा। मैं इसे अपने हाथों जहन्नुम वासिल करूँगा और इसका बाप अभी इसी वक्त इसका खून मुझे माफ़ करेगा। यासिर की कहते ही सबको सांप सूंघ गया था। शफीक दिन बखूर रह गया। यासिर पुत्र, तेरी ये सज़ा बहुत कड़ी है। जवान खून है वो शफीक का। सरपंच ने कहा। इस जवान खून है मेरी बहन के साथ 2 बार ज़्यादती करने की कोशिश की है। मेरी यही शर्त है। मुझे हमसा शफीक अपने सामने खड़ा चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूँगा। यासिर ने कहा। यासिर, क्या उसे गोली मारने से जो हो चुका वो बदल जाएगा? अवैस ने कहा। नहीं, लेकिन उसे गोली मारने से जो होने वाला है वो ज़रूर बदल जाएगा। ज़ुबैर और रमल्ला का मामला एक शौहर और बीवी का मामला था। शौहर ने माफ़ी मांगी और बीवी ने माफ़ कर दिया। मैं इसे नहीं कह सकता कि वो ज़ुबैर को माफ़ न करे, लेकिन हमज़ा, उसने मेरी बहन की इज़्ज़त रोलने की कोशिश की है, वो भी 2 बार। ज़ुबैर भले ही बेगैरत बन जाए, रमल्ला भले ही इसे माफ़ कर दे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। इस बदकारी की सज़ा मौत ही है जो मेरे हाथों लिखी है। यासिर कहता चला गया। शफीक चुपचाप सर झुकाए बैठा था। ज़बान से कह देना कितना आसान है कि मेरी बला से चाहे हमज़ा को गोली मार दे, लेकिन हकीकत, यासिर पुत्र इतना पत्थर दिल नहीं बनते। माफ़ कर देना खुदा की ज़ात को बहुत पसंद है। सरपंच ने कहा। लेकिन खुदा की ज़ात ने बदला लेने से भी मना नहीं किया सूफी साहब। यासिर ने कहा। तो ये बदला किसी और तरह ले ले पुत्र, कोई और शर्त मनवा ले। वो बोला। चले ठीक है फिर। इज़्ज़त का बदला मौत ना सही तो इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त ही सही। मुझे हमज़ा शफ़ीक की बहन के साथ वही सब करने का इख्तियार है जो उसने मेरी बहन के साथ किया। अगर शफ़ीक अपने जवान बेटे का कत्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मुझे रमल्ला की इज़्ज़त के बदला नाइमा शफ़ीक चाहिए। यासिर ने धमाका किया था। यासिर, हमज़ा ने रमल्ला की इज़्ज़त पामाल तो नहीं की थी। अवैस ने ज़रा सी हिम्मत की थी। तो फिर क्या किया था? यासिर ने पूछा। अवैस बोल न सका। जो उसने किया, वही मैं कर लूँगा। यासिर ने कहा था। वो इशा के वक़्त दोबारा कमरे में आया था। कमरा हनूज़ लॉक्ड था। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आ गया। पूरा कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। उसने लाइट जलाई। शर्मीन कंबल लपेटे बेड के एक कोने में सिमट कर लेटी थी। वो कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा। फिर किचन में आया, खाने की ट्रे बनाई और कमरे में आ गया। शर्मीन, उसने धीरे से शर्मीन के ऊपर से कंबल खींचा। वो सोती बन गई। मुझे पता है तुम जाग रही हो। उठो, वो बोला। शर्मीन टस से मस ना हुई। शर्मीन, या बस भी करो। अवैस ने सारा कंबल खींचकर एक तरफ फेंक दिया। मेरी जान, वो इसके पास बैठते हुए धीरे से बोला था। शर्मीन ने अपना बाजू आंखों पर रख लिया। चल बस कर देना। अवैस ने धीरे से इसका बाजू हटाया। शर्मीन ने मंदी मंदी सी आंखों से उसे देखा। अवैस ने बहुत मोहब्बत से इसके चेहरे और माथे पर बिखरे बाल हटाए थे। अच्छा, आई एम सॉरी। चलो अब सुलह कर लेते हैं। वो बोला। आई हेट यू। वो करवट बदल गई। बट आई लव यू। अवैस उसके ऊपर झुका था। जिनसे प्यार करते हैं इन्हें जानवरों की तरह बांध कर नहीं रखते, आज़ाद छोड़ देते हैं। वो तड़क कर बोली। कहाँ जाओगी आज़ाद होकर? अवैस ने पूछा। तुम्हारी बला से, जहाँ मर्जी जाओ। वो बोली। शर्मीन, तुम्हारे मिक्की के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गए हैं।
اس کے علاوہ اور کیا ٹھکانا ہے تمہارے پاس؟ اویس نے پوچھا۔ اویس میں جو مرضی کروں، چاہے کسی بس کے نیچے آ کے مر جاؤں یا گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال لوں، تم بس میری جان چھوڑ دو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، دماغ ابھی بھی سیٹ نہیں ہوا تھا۔ حرام مت مر جاؤ گی لیکن میرے ساتھ خوش ہو کر نہیں رہو گی۔ شمین، آخر میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی ایک وجہ تو دو مجھے چھوڑنے کی۔ اویس تنگ آ گیا تھا۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے تم سے، زہر لگنے لگی ہے تمہاری شکل، بس یہ وجہ ہے۔ وہ چیخ کر بولی۔ اویس تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر چند لمحوں بعد اٹھا اور کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ اچھا کھانا تو کھا لو۔ وہ اس قدر بےعزتی بھی ہضم کر گیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، وہ تنک کر بولی۔ کھا لو، مجھ سے نفرت ہے، کھانے سے تو نہیں ہے نا؟ اویس نے کہا اور لقمہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، منہ کھولو، وہ بولا۔ شرمین نے قہر آلود نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور زور سے ہاتھ مار کر ٹرے الٹا دی۔ سارا سالن بستر کی چادر خراب کر گیا، پانی کا گلاس کمبر پر الٹ گیا۔ اویس کی برداشت یکلخت ختم ہو گئی۔ اس نے شرمین کی گردن دبوچ لی۔ تم دراصل لاتوں کی بھوت ہو جسے میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بستر پر پھینکا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، وحشی انسان، وہ چلائی۔ تمہیں وحشی بن کر دکھاتا ہوں آج۔ اویس کو غصہ آ گیا۔ شرمین ہاتھ پاؤں مارتی رہ گئی، لیکن اویس نے اسے ہلنے نہ دیا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا ہے کسی بس کے نیچے آنے کی؟ میرے ہاتھوں سے بچو گی تو اس کمرے سے نکلو گی نا تم۔ اویس واقعی وحشی بن گیا تھا۔ میری محبت کا تماشا بنا دیا تم نے۔ وہ اسے اپنا ہر حق وصول کرتا چلا گیا۔ شرمین کی سسکیاں گھٹ گھٹ کر ہی مر گئی، لیکن اسے رحم نہ آیا۔ پھر تم پوچھتے ہو کہ کوئی ایک وجہ دو مجھے چھوڑنے کی۔ شرمین نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سرگوشی کی تھی۔ چلو، آج کے بعد کم از کم تمہارے پاس وجہ تو ہوگی نا؟ اویس نے اس کا شکستہ وجود رہا کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا پورے کمرے میں کسی موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رخسانہ اور یاسمین چپ چاپ ایک چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ رفیق صاحب دوسری طرف اپنا حقہ لیے بیٹھے تھے۔ شفیق صوفے پہ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ اویس بیٹھا تھا۔ حمزہ اور زبیر دیوار کے سہارے ٹیک لگائے کھڑے تھے اور وہ نائمہ شفیق، وہ سہمی ہوئی سی دیوار دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بس وقفے وقفے سے حقہ گڑگڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ ہن کی کرنا چودھری؟ رخسانہ کی نحیف سی آواز رفیق کے کانوں تک پہنچی تھی۔ میری گال سنو، میں تو کہتا ہوں اس سارے معاملے کو سرے سے ہی ختم ہونے دو۔ زبیر پتر، تھوڑے دن کو بیوی بچوں کی یاد آئے گی، پھر آہستہ آہستہ بھول جائیں گے، دوسرا بیاہ کر لیں، اللہ اور بچے دے دے گا تجھے، زندگی کون سا ایک عورت پر ختم ہو جاتی ہے۔ رفیق نے کہا، اور اگر اللہ نے میری قسمت میں بس یہی عورت لکھی ہوئی تو، میری اولاد اسی کے بطن سے لکھی ہوئی تو، اس کے بعد میری قسمت میں کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر جانا لکھا ہوا تو ٹھیک ہے پھر؟ وہ بولا تو رخسانہ کے کلیجے پر ہاتھ پڑا۔ تو پھر کی کرا؟ شفیق اور یاسمین نے ہمیشہ اپنی اولاد میری اولاد پر قربان کر دینے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا؟ رخسانہ نے کہا، آواز بھیگ رہی تھی۔ زرینہ کی دفعہ بھی ان کے آگے ہی ہاتھ جوڑے تھے ہم نے، وہ بھی جب اس نامراد کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر کی چوکھٹ پار کر کے صرف 2 دن بعد ہی واپس آ گئی، تو ان دونوں کے آگے ہی جھولی پھیلائی تھی ہم نے، تب بھی انہی کی منت کی تھی کہ ہماری عزت بچا لو۔ چلو، شفیق کو تو کہیں کہ تیرے باپ کا سگا بھائی تھا، خون تھا، لیکن یاسمین تو پرائی تھی نا۔ پرائی ہونے کے باوجود اس نے اپنا بیٹا میری جھولی میں ڈال دیا۔ وہ رو رہی تھی، اور اگر شمس نہ ہوتا تو زرینہ کہاں جاتی، کیا بنتا اس کا، کون اپناتا اسے؟ وہ بولی، اور آج 8 سال بعد پھر وہی رات آن کھڑی ہوئی ہے۔ زبیر پتر، میں ان دونوں سے کیسے کہوں کہ آج اپنا دوسرا بیٹا بھی میری جھولی میں ڈال دو، تاکہ وہ میرے بیٹے کی خوشیوں کی بھینٹ نہ چڑھ جائے؟ کیسے کہوں؟ وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ شمس بھی ایک طرف خاموش کھڑا تھا، لیکن زرینہ خاموش نہ رہ سکی۔ بس کرتے امی، پچھلے 8 سالوں سے اس شخص کا جو احسان آپ دونوں نے میرے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اس کا بدلہ میں ہزاروں بار چکا چکی ہوں۔ کاش امی تو نے اس رات چاچا اور چاچی کے سامنے جھولی نہ پھیلائی ہوتی۔ کاش تو مجھے اس شخص کے ساتھ بیانے کی بجائے زندہ کاٹ دیا ہوتا۔ یہ مرنا ایک دفعہ کا کافی ہوتا۔ اب پچھلے 8 سالوں سے 800 دفعہ مر چکی ہوں میں۔ میری کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس رات میں اس کالی رات کا ذکر نہ آتا ہو۔ جب جب اس شخص نے مجھ سے اپنا حق لیا ہے، تب تب مجھے یاد کروایا کہ میں بدکار ہوں، میں نے بدکاری کی تھی۔ زرینہ یکدم رو پڑی تھی۔ خدا کی قسم امی، میں نے ہزاروں بار شمس کے پیروں میں اپنا چہرہ رکھا ہے، سینکڑوں بار اس سے معافی مانگی ہے،
8 सालों में कोई ऐसी एक रात नहीं गुज़री जिसमें मुझे लगा हो कि ये शौहर बनकर मुझे ज़ेर करता है। हर बार ये फ़ातिह बनकर मुझे मग़लूब करता है। 8 साल हो गए इसके मुँह से अपने लिए बदमाश का लफ़्ज़ सुनते। 8 साल हो गए इसके थप्पड़ खाते, ठुड्डे खाते। 8 सालों में इस शख़्स ने एक मीठा बोल नहीं दिया, हमेशा गाली ही दी, हमेशा ताना ही दिया। 8 सालों से ये सिर्फ़ मुझे इसलिए बीवी मान रहा है क्योंकि मैं इसके बच्चों की माँ हूँ। वो आज फट पड़ी थी। अल्लाह ने फ़रमाया मैं शिर्क के अलावा जो गुनाह चाहूँगा माफ़ कर दूँगा। फिर बंदे क्यों नहीं करते? 8 सालों से इसे मेरे दोनों हाथ जुड़े हैं, हर एक के सामने, लेकिन माफ़ी नहीं है। और अगर मेरे गुनाह के लिए किसी के पास माफ़ी नहीं है, तो हमज़ा के लिए माफ़ी क्यों? इसके लिए इतना नरम गोशा क्यों? इसने भी तो वही गुनाह किया है ना? अम्मी, जो मैंने किया था। वो कहती चली गई। सभी खामोश थे। मैं अपनी मासूम बच्ची की सी सूरत कुर्बान नहीं करूँगा। शफ़ीक ने कहा, तो क्या करेंगे फिर? जवान बेटा कत्ल करवा देंगे? यास्मीन तड़प कर बोली, इस जवान बेटे ने एक शादीशुदा लड़की के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, वो भी 2 बार। इस जवान लड़की ने एक नन्ही जान को इस दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर दिया और मैं उस बदकार के लिए अपनी बेटी दाँव पर नहीं लगाऊँगा। शफ़ीक ने फैसला सुना दिया था। कोशिश ही की थी ना ज़्यादती की तो नहीं थी। यास्मीन सबसे पहले माँ थी, तो वो भी तुम्हारी बेटी के साथ ज़्यादती थोड़ी ना करेगा, बस वही करेगा जो तुम्हारे बेटे ने उसकी बहन के साथ किया है। बस अकेले में उसका दुपट्टा खींचेगा, उसे गले से लगाएगा, उसे चारपाई गिराएगा। फिर इस पर हमज़ा ने शफ़ीक की बात काट दी। अब्बू बस, बस करें। वो चीखा था, मुझे यासर की शर्त मंज़ूर है। मैं इसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। गुनाह भी मैंने किया है, तो सज़ा नाइमा के हिस्से में क्यों आए? हमज़ा ने धीरे से कहा था, वो गोली मार देगा तुझे। यास्मीन रो पड़ी थी। अम्मी, अगर मुकद्दर में यूँ ही लिखा है तो यूँ ही सही। वो बोली, ताया जी, तुसी मुकान का कब्ज़ा ले लो। ज़ुबैर का सामान वहाँ शिफ्ट कर दें और रमल्ला को लेने मैं उसके साथ जाऊँगा। वह फैसलाकुन लहजे में बोला था। यास्मीन रोते हुए बाहर निकल गई। नाइमा एक तरफ खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी।